A very good afternoon to all of you. Welcome to today's session. So children, before we start the session, I would like to tell you children, these are just informative sessions. This is nothing to do with your syllabus, but I want to discuss few things which are basically very important. ठीक है, syllabus तो हम लोग कर ही लेंगे, पूरा का पूरा discuss करेंगे, सारे के सारे concepts discuss करेंगे, सारे सारे topics discuss करेंगे. But I'm going to basically share today the most interesting facts about the human body, and it's just an informative session. And before we start, let me introduce you to myself. Once again, children, I am Anam Khan. I'll be your biology expert, and we're going to discuss all the amazing and interesting topics related to biology, just like we have been discussing. And today we're going to discuss about the 10 shocking facts of human body. कि exactly human body में होता क्या क्या है? तुम लोग पता है, तुम लोग daily life पे experience करते हो. There are a lot of things, there are a lot of unique things, but everything has a scientific reason. Everything has a physiological reason. So yes, इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा, बिकॉज अपनी ही पर्टिकुलर बॉडी के बारे में जानने से बेहतर क्या हो सकता है. सो येस, वी गोइंग टू डिस्कस सम इंटरेस्टिंग एंड सम वेरी शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट योर ह्यूमन बॉडी, फॉर आवर ह्यूमन बॉडी. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. येस, द वेरी फर्स्ट थिंग, एज यू नो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अगेन टू माई सेल्फ दैट आई एम Anam Khan. I have an experience of 7+ years. I mentored more than 12,000 students and I'm qualification in MSc Plant Sciences dealing with the plant botany. So this is my basically introduction to you. This is about me, that this is my qualifications. At least you should know about your educator. So this is a quick introduction about myself. So children, let's start discussing about the interesting facts about the human body. So children, human body facts. Till 10th grade you study heart 5 to 6 hours, but the human body has only 12 system. ठीक है, बट यू हार्डली स्टडी 5 to 6 सिस्टम. अभी जब 10th में आओगे, बेसिकली जितने भी हैं वो सब बेसिकली स्टडी करेंगे सारे के सारे सिस्टम. पहला ही चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें तुम लोग सारे के सारे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, पूरा का पूरा डिस्कस करोगे. बट टेक्निकली देयर आर 12 सिस्टम इन योर बॉडी. हम पढ़ेंगे सिर्फ 5 या 6 10th स्टैंडर्ड में. ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में 5 या 6 पढ़ेंगे. पर ये जो है बेसिकली हमारी बॉडी में कितने अप्रोक्सीमेटली देयर आर 12 सिस्टम ऑपरेटिंग. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू चिल्ड्रन, ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं, ये 12 के 12 सिस्टम ऐसा नहीं है अपने अकेले काम कर रहे हैं, मजे से काम कर रहे हैं. नहीं, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट. दे आर बेसिकली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. दे आर कंप्लीटली बेसिकली आई वुड से दे आर को इंडिपेंडेंट. ठीक है, बेसिकली आई वुड से ऐसा नहीं अकेले भी पूरा फंक्शन कर रहे हैं, अपना जो असाइन है वो फंक्शन कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं उन्हें किसी और सिस्टम की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है. दे आर कंप्लीटली द होल प्रॉपर बॉडी, द होल ह्यूमन सिस्टम इज कंप्लीटली वर्किंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर. ओके, तो कौन कौन से सिस्टम है जो तुम्हारी बॉडी में हो रहे हैं? वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. यस, okay, integumentary system. Next we have lymphatic system, we have muscular system, we have nervous system, we have reproductive system, we have respiratory system, we have skeletal system, we have urinary system, we have immune system. So ये सारे के सारे system हैं, from circulation of blood to the digestive system to the endocrine system, which is totally related to your hormones. Integumentary system, there is lymphatic system, which is basically your lymph, जो सारे के सारा immune system संभालता है. muscular system तुम्हारी मसल सारी की सारी, नर्वस सिस्टम तुम्हारे न्यूरॉन्स, पूरा कुछ पूरा नर्वस टिश्यू जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे सारी की सारी स्पीशीज मेंटेन रहती हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम रेस्पिरेशन करते हैं. स्केलेटल सिस्टम, पूरा का पूरा. यूरिनरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम. तो देखने को तुम्हारे सिस्टम हम लोग 5 से 6 पढ़ेंगे, बट ऑन एन एवरेज योर बॉडी हैज 12 सिस्टम. ठीक है, These of course are very interesting facts. सोचो तुम्हारी बॉडी में 12 सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे इन अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड manner. Okay, so this is just an introduction towards the body system which are basically operating and how they are basically being a part of your daily life. This is how you'll be maintaining a healthy life on earth. Moving forward, next we have human body facts too. So children, अगर मैं बताऊं you have 5 senses. ठीक है, सबको पता है, सब सुनते 5 senses, we have 5 senses. नहीं, we have actually 9 senses. Yes, what we have? 9 senses. Okay, चलो कौन कौन से सेक्शंस हैं ये वाले तो तुम लोगों को पता है. विजन, yes, just a second children.
ठीक है। विजन तो तुम लोगों को पता है पूरा का पूरा तुम्हारा देखने के लिए, हेयरिंग सुनने के लिए, स्मेल यू कैन बेसिकली डिटेक्ट बैड स्मेल, गुड स्मेल, ऑफ कोर्स यू कैन बेसिकली डिटेक्ट बिटवीन द बैड स्मेल ऑफ कोर्स एंड द फ्रेग्रेंस। द टेस्ट सबको पता है, सबका अपना अपना फेवरेट फूड है, सो यू कैन बेसिकली डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ योर फेवरेट फूड एंड द थिंग्स विच यू डोंट लाइक ऑल्सो। देन यू हैव टच, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी सेंसेस, बट कुछ ऐसे सेंसेस भी हैं जो कि बेसिकली बॉडी में ऑपरेट करते हैं। एक है बैलेंस, ठीक है, कि कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, बैठना है चेयर पे तो ऐसे बैठना है, खड़े होना है तो किस तरह से खड़े होना है, अगर हमें लाई डाउन करना है तो किस तरह से लाई डाउन करना है, किस तरह की स्लीपिंग पोजीशन यूज करनी है, वो पूरा का पूरा तुम्हारा बैलेंस में आता है। फिर तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर, तुम लोगों को पता है वी आर होम्योस्टैटिस, बाहर ठंड है तो हम लोग शिवर करने लगते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, बाहर गर्मी है, गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है, स्वेटिंग करने लगती है, पसीना आने लगता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होता है। दूसरा, हम पेन महसूस कर सकते हैं, वी फील पेन, जरा से भी चोट लग जाए, जरा सा भी कुछ हो जाए, जरा सा गिर जाओ, जरा सा कुछ चुभ जाए, जरा सा कुछ बेसिकली रिमूव हो जाए स्किन, वी फील पेन। सो यस, अपार्ट फ्रॉम दीज important prominent 5 senses, we also have 4 senses. Yes, we all must sharpen our 10th sense, though the common sense. Of course children, there's something which is not at common at all, which is the common sense, जो हमें हम लोगों को शार्प करना है। Of course this is absolutely very important to have a very common sense, जो लोगों में of course I don't know होता ही होगा of course, but it's very important to basically sharpen. Just a joke children for you only, so to basically sharpen your common sense. Clear? This is about the human body facts 2. Okay, let's see what we have next. Body facts 3. Cleaned your face? Not really. Children, agar you know, you likely have 100 if not thousands of skin mites living on your face right now. Imagine, can you see dermodex mite? Yes, एक नहीं कम से कम 1000, चलो 1000 नहीं तो 100 of dermats basically living on your skin. Isn't that very tacky? I'm not feeling good about it. Eyelash mites, tiny creatures live on old skin cells और natural oil sebum produced by the human hair follicle. So ये जो छोटे छोटे tiny mites हैं जो तुम्हारे eyelash पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर तुम्हारी स्किन के जो सीबम प्रोड्यूस, पिंपल हो जाते हैं ना, तो क्या है पिंपल किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तो होता है। एक्ने किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाता है बेसिकली स्किन में, ऑयल में जो है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं। दीज आर यूजली हार्मलेस दो दे कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन इन अ माइनॉरिटी ऑफ पीपल। वैसे तो ये हार्मलेस हैं बट कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन जो है वो क्रिएट का कॉज कर देते हैं इन माइनॉरिटी ऑफ पीपल, बहुत कम जगह पर। वैसे तो जनरली ये हार्मलेस है, तुम्हारी बॉडी में रहते ही हैं, ठीक है, बट कभी कभी बेसिकली क्या होता है कि ये एलर्जी क्रिएट कर देते हैं। कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है ना, पता है ना तुम लोगों को, जरा सा एक्सपोजर टू सनलाइट दे माइट गेट दैट रैशेस एंड एवरीथिंग, सो बेसिकली समटाइम्स दे डू कॉज एलर्जी। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग क्या यूज करो, हमेशा सनस्क्रीन यूज करो, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स, प्लस ऑलवेज वॉश योर फेस आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड। कहीं बाहर से आते हो तो सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने चाहिए, उसके बाद अपना फेस वॉश करना चाहिए विद क्लीन वाटर ओनली। अगर फेस वॉश से नहीं कर सकते, सोप से नहीं कर सकते, जस्ट क्लीन वाटर से वॉश करो, देन जस्ट pat dry your hands, then pat dry your face, and then you sit and have a sip of water. It's very important. It's going to protect you and your family also from any kind of a microbial diseases or any kind of a infection you might carry from outside. ठीक है, so ये चीजें करनी चाहिए। जनरली मैंने लोगों को देखा ऐसा करते हुए, which I truly appreciate if they are coming from very long hours after work, काम से बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, सुबह के गए वो शाम को आ रहे हैं, तो सबसे पहले what they do, take a bath, they go and bathe, यस, जाके नहाते हैं सबसे पहले। इट्स अ वेरी गुड हैबिट, क्योंकि भाई आपको, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ही हो जिम्मेदार। यू कैन ओनली डू दैट, यू कैन ओनली प्रोटेक्ट योर फैमिली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहीं अगर थोड़ी देर के लिए बाहर भी गए हैं तो कम वापस आए तो हाथ धोएं, मुंह धोएं, उसके बाद बैठें, ठीक है, okay, and then you start eating something. So this is about the human body fact 3. I hope this is clear to you. Yes, is it clear children?
Next, human body fact 4. So children, according to the latest advancement in biometric verifications, along with the fingerprint and retina scan, tongue print also can be used to verify the identity of the person. Isn't that strange? Very strange. Your tongue has certain, can you see that? Can you see that particular print? Yes, of course, you can see your tongue in the mirror and you can see those shapes and everything. So children, रेटिना वाला तो करते हैं, आँख का फिंगरप्रिंट यूज करते हैं. वी कैन यूज योर रेटिनल स्कैन ऑल्सो, वी कैन यूज योर फेस स्कैन ऑल्सो, जो तुम्हारे मोबाइल वगैरह में होता है. बट रिसेंटली वी हैव सीन कि टंग स्कैन से भी, ये भी एक यूनिक आईडी है जो पर्टिकुलर पर्सन में ही होती है, यूज टू वेरीफाई एंड आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर person. So just like fingerprints, a tongue have unique identification marks. तो इससे भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, दैट कुड बी अ टंग मार्क. ठीक है, आप जाके कहीं पर टंग इंक में लगा के कहीं पेस्ट मत कर देना, ये सिर्फ फैक्ट्स है कि ऐसा भी पॉसिबल है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर डेविड जैंग, द टॉप ऑफ द टंग हैज अ यूनिक ज्योमेट्रिक शेप एंड फिजियोलॉजिकल टेक्सचर दैट कुड पोटेंशियली बी यूज्ड अपॉन वेरिफिकेशन पर्पसेस. सो सिंपल सी बात है, हो सकता है कि भाई क्रिमिनल पर्पसेस से बेसिकली, और आई वुड से एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी से बचने के लिए और स्टॉप करने के लिए ये यूज करते हों. बेसिकली ऑफ कोर्स द कॉप्स कैन यूज दैट, एनीबडी कुड यूज दैट, because this is also a one such method to basically identify a person, should identify potentially, can be used as a verification process. Yes, this is also can be used as a verification process. The tongue can be used as a verification process. Clear? Yes, I hope this is clear to you. Next, let's discuss about the human body facts 5. Next, we have, according to Hindu mythology, Ganesha was created using the dirt of the body of goddess Parvati. We are humans, but we too can create something from our bodies called soaps. The average adult body can make over 7 bars of soap with the fat that is stored in our cells. Soap is used to make animal fat in the past. So children, तुम लोगों ने सबने soaps वगैरह use किए हैं, and you know that soap basically used to clean off the dirt. So whatever the fat basically been stored in our body could be basically removed and would be utilized to make soap. ठीक है, सो सोप वैसे भी अगर तुम लोगों को पता हो तो बहुत पहले, कभी जब पहले, अभी तो केमिकल वगैरह यूज वगैरह होते हैं, बट बहुत पहले सोप्स वगैरह जो हैं वो कैसे यूज होते थे, वो एनिमल फैट वगैरह से यूज होते थे. यस, कहते हैं ना, एनिमल्स की फैट यूज करके जो है सोप्स वगैरह, क्लेंजिंग सोप्स वगैरह बनाए जाते थे. पर हमारी बॉडी में जो बेसिकली फैट डिपॉजिट है, हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू वगैरह है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं टू बेसिकली क्रिएट सोप. एन एवरेज एडल्ट पर्सन अगर हम बेसिकली आइडेंटिफाई करें, वो 7 बार ऑफ सोप्स बेसिकली बना सकता है. इजंट दैट बेसिकली ग्रेट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी लीन पीपल हु आर not that healthy, but I'm talking about good healthy adult person. They could make 7 bar of soaps daily. Yes, this is about the other fact. Clear? Yes, I hope this is clear. Just interesting facts हैं, ज्यादा ऐसा टेंशन नहीं लेना कि मैम क्या क्या बता रही हैं. ठीक है, next, let's see what we have next. We have human body fact 6. So you are the most beautiful person ever. Everyone loves compliment. Of course, everybody loves. I love compliment. You also love compliment. When someone compliments you, you go through a happy phase and you blush. Of course, anybody, if somebody compliments you, what happens? Your skin starts getting red, and that is where basically you start blushing. So when you blush,
Yes, it is because the blood rushes to the skin of your face. So children, when you basically feel somebody compliments you, somebody says something nice to you, compliments you, greets you really well, you start blushing. What it happens basically, your cheeks, your blood vessels, basically they have this good blood rush into your basically veins, and of course this is why, because you start blushing. And because of this blushing also, this rushes to the lining of your stomach. That means when you blush, so that's your tummy. So that tummy में भी तुम्हारे क्या होता है, बहुत ज्यादा blood circulation बढ़ता है. Of course cheeks में blood circulation हो जाता है, there's going to be a blood rush and then going to basically have red cheeks. But the इंटरेस्टिंगली वो ब्लड रश तुम्हारी टमी में भी होता है. यू फील बटरफ्लाइज, राइट? समटाइम्स यू डू फील बटरफ्लाइज एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द ब्लड रश. नाउ यू गेट व्हाई यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक. Yes, that's the reason. They are not real butterflies in your stomach. That is just a blood rush. If somebody says I'm having butterflies, you can tell them it's not a butterfly. It's just the blood rush in your body. So this is also one of those facts. When somebody compliments us, somebody says something nice to us, we start blushing, and that is because the blood circulation rises in your cheeks and in your stomach also. Clear? So this is another body fact about your body. Next we have don't chew brain, it eats itself. ये कैसी बात बता दी? Yeah, what is this? So children, according to a study published in the Cell Metabolism, student of Albert Einstein College of Medicine, the hypothalamus of course is a part of the brain, breaks down brain cells to carry out autophagy when the push to extreme starvation. अगर brain cells, imagine ब्रेन सेल्स को अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बेसिकली बोला गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडिकल कॉलेज के रिसर्च में कि ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, वहाँ पर जो ब्रेन के सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं और ब्रेन क्या करने लगता है, ऑटोफैगी. ऑटोफैगी समझते हो तुम लोग? ऑटोफैगी मतलब सेल्फ ईटिंग, ठीक है? अपना ब्रेन खुद ही सो सेल्स है अपने वो क्या करने लगेगा, कंज्यूम करने लगेगा, अगर इसे उस तरह से पुश किया गया स्टारवेशन में. व्हाट इज ऑटोफैगी? ऑटोफैगी इज अ प्रोसेस व्हेन अ बॉडी बिकम्स स्टार्व टू सस्टेनेंस, सेल स्टार्ट्स ईटिंग बिट्स एंड पीसेस ऑफ देमसेल्फ. ऑटोफैगी कैसा प्रोसेस है? ऑटोफैगी ऐसा प्रोसेस है जब बॉडी बहुत ज़्यादा स्टार्व करने लगती है, तो जो सस्टेनेंस सेल्स हैं बॉडी के, वो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस जो पड़े होते हैं सेल्स के, उनको क्या करते हैं, बेसिकली कंज्यूम करने लगते हैं. तो समटाइम्स इट हैपन्स, द ऑटोफैगी हैपन्स. तुम लोगों ने पता भी है तुम लोगों को कि सेल में क्या होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, ठीक है? 9th में पढ़ के आए हो तुम लोग. लाइजोसोम्स में बेसिकली क्या होते हैं, सुसाइडल बैग्स, ठीक है? सुसाइडल बैग्स, यस. लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी क्या करते हैं, वो सेल को क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं और सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से क्या करता है, पूरा सेल जो है ऑटोफैगी मोड में चला जाता है. पर यहाँ पर किस मोड में जा रहा है, ऑटोफैगी मोड में तब जा रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम बेसिकली उसको स्टार्व करवा रहे हैं, भूखा मार रहे हैं, स्टार्व करवा रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज ईटिंग इटसेल्फ. सो दिस इज हाउ योर ब्रेन also starts doing the autophagy. This is the reason your brain starts doing the autophagy. Clear? Yes? Yes, moving on to the next we have human body fact number 8. Children, you ever seen a swimming pool? सबने swimming pool देखा है? You. An average human produces 25,000 quarts of saliva or spit in a lifetime. That is enough to basically fill 2 swimming pools. भाई पूरी जिंदगी भर की बात हो रही है. This is something you should know कि तुम जो saliva produce करते हो while you see your favorite food or while you basically consume anything, जो saliva produce होता है पूरे लाइफ टाइम में तुम्हारी बॉडी में जितना saliva produce होता है, अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो वो 2 स्विमिंग पूल के बराबर है, which is a very good amount. An average adult produces 25,000 liters or quarts of saliva, which is basically enough to basically fill the 2 swimming pools. Clear? So this is about the human fact. तो ये जो saliva है जो produce करते हैं, पूरे लाइफ टाइम की बात आ रही है. ऐसा मत सोचना कि मैम एक दिन की बात करिए. This is about the lifetime. Okay? This is just about what is basically happening throughout your life. Clear? कि तुम्हारा saliva जो है
पूरी लाइफ में इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इनफ टू बेसिकली फुलफिल दी 2 स्विमिंग पूल इन योर लाइफ। नेक्स्ट, human body facts 9, laid end to end. What do you mean by an adult blood vessels could circle earth equator 4 times? Imagine, तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड, तुम लोग को पता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये जो तीनों की तीनों हैं तुम्हारी ब्लड वेसल्स, ये दे आर सफिशिएंट, इतनी हैं तुम्हारी बॉडी में कि अर्थ के इक्वेटर के 4 चक्कर लगा सकती हैं। इमेजिन दिस मच इन लेंथ, दिस मच अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स यू हैव इन योर बॉडी, कि वो अर्थ के जो हैं वो 4 चक्कर लगा लें। क्या लगा लें? 4 चक्कर लगा लें। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो बेसिकली ह्यूमन बॉडी इज full of unique things, children. You know, of course, God is the creator, so the whole universe, the human body is fulfilled with everything. There are few things which we know about, we have researched about, we have published about, but there are very many things which you don't know about. How these systems work, how your day-to-day life basically work. Everything is basically controlled and coordinated in your body. Yes, the human body is an amazing, the most complex organization on the planet. Yes, next we have next and the last fact about the human body is that, do you know that humans glow in dark too? Yes, human body do emit light which is 1000 times less intense, to which our naked eyes are very sensitive. Yes, हम लोग भी, imagine कोई मुझसे बोले अरे मैं तो चमकता हूँ रात में, I would definitely laugh, you will also definitely laugh, but this is true. But काफ़ी less intense है, बहुत ज़्यादा intense नहीं है, this very less intense, to which अगर हमारी नेकेड आइज उसे नहीं बेसिकली सेंस कर सकती। अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स, ह्यूमन बायोल्यूमिनेसेंस की बात हो रही है, इनविजिबल लाइट एक्सेस, इट्स टू डिम फॉर आवर वीक आइज टू पिक अप। भाई अब ऑफकोर्स की बात है, हमारी लाइफ कह रही हूँ, हमारी लाइफ कह रही हूँ, व्हाट इज रॉन्ग विद मी चिल्ड्रन? ओके, जस्ट फम्बलिंग, बट ठीक है, हमारी आईज जो है बेसिकली उसे नहीं देख सकती। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू बेसिकली बायोल्यूमिनेसेंस, वो विजिबल लाइट जो है वो एग्जिस्ट करे, इट जस्ट टू डिम फॉर आवर वीक आईज टू पिक अप ऑन। यस, सो वी डू ऑल्सो हैव सम बायोल्यूमिनेसेंस। जस्ट इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऐसा नहीं है कि अब अंधेरे में खड़े होके इमेजिन करने लगो कि अरे आई एम गोइंग टू बेसिकली एमिट लाइट, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज यू कैन नॉट सी इट विद योर naked eyes. This is not possible with your naked eyes. Clear? दिस इज अबाउट दी। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़े, कितने सारे सिस्टम हैं, कितने सारे सेंसेस हैं, कैसे आर्टरीज वगैरह हमारी 2 इक्वेटर के बेसिकली राउंड लगा सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से बस ये पर्टिकुलर सेशन देखना है और सुनना है कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो चिल्ड्रन, यू गोइंग टू हैव दिस अमेजिंग टाइम, दिस इज गोइंग टू बेसिकली बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, just an informative session apart from your daily sessions of 9th standard जो हम basically batch शुरू करने वाले हैं। we going to have lots of bridge courses, we going to have, आज हमने orientation किया था, हम फिर से कर लेंगे orientation, we going to discuss your syllabus, we going to discuss the distribution of marks next week. Yes, you can see your sessions basically जो schedule हो जाएंगे, you can register for them. Let's discuss few things about the Imbibe app. So children, as you know, the Imbibe is a platform which gives you everything at one place. Yes, there's an Imbibe Lens app. क्या करना है Imbibe Lens ऐप में अगर मैं बताऊं, अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को अपने फोन में, सो दिस इज द Imbibe Lens ऐप, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। Imbibe Lens, this is how it looks like. Yes, can you see this? See this? तो चिल्ड्रन, अगर मैं ये स्कैनर ऑन करूं और देखो क्या स्कैन करती हूं मैं, देखते हैं मैं क्या करती हूँ, ये स्कैन करती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया,
मैंने ये अपना स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन स्कैन किया तो क्या आ गया? लेंस, ऑल अबाउट बेस, की, स्मार्टफोन, चाइल्ड, लेवलर, सब आ गया. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द चाइल्ड एंड इट इज गोइंग टू लोड अ 3D मॉडल ऑफ चाइल्ड. लेट्स सी चाइल्ड का 3D मॉडल लोड हो गया है जस्ट बिकॉज मैंने अपनी रैंडम सी स्क्रीन को स्कैन किया है. चिल्ड्रन, आई फील दिस इज वन सच अमेजिंग एप्लीकेशन. और कुछ अचीव जर्नी, लेवलर, ऑल अबाउट की का बेसिकली मैंने कीवर्ड जो भी उसने स्कैन करा था तो देखो उन्होंने की बन के आ गई है. ठीक है. सो चिल्ड्रन, यू गोइंग टू बेसिकली एक्सपीरियंस ऑल द थिंग्स. ये देखो दिस इज की बन के आ गई. सो दिस इज एन अमेजिंग ऐप चिल्ड्रन. यू कैन एक्सप्लोर द इम्बाइब लेंस ऐप. मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. देयर आर इंटरैक्टिव कूबो लेसन्स, 3D 2D एसेट्स, इम्बाइब प्रैक्टिस टेस्ट विच गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. कि जितना पढ़ा है भाई उससे जरा टेस्ट वगैरह तो भाई अटेम्प्ट करो. अचीव जर्नी इज गोइंग टू हेल्प यू ब्रिज द knowledge gaps between the two concepts. It's amazing. छोटे छोटे diagnostics tests हैं जिससे तुम कर सकते हो. We have parent app, we have Imbibe live classes, doubt resolution, Imbibe learn, all of those things at one place. You can just explore everything. This is one such amazing platform which gives you everything at one place. Next we have what? We have the Telegram channel. You can scan this barcode and join us on the Telegram channel so you never miss an update regarding anything. Is there anything you can also ask on this Telegram channel? So please do go and scan this and join us on the Telegram channel. Yes children, I hope you have enjoyed the session. पूरा का पूरा सेशन बस इंटरेस्टिंग सेशन था. देखो, समझो और बस इतना. कुछ कहीं पर एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला. इट्स जस्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यू आर नीड टू बेसिकली पुट अप. तो मैंने वो बता दिए तुम लोगों को. आई होप यू हैव एंजॉयड. आई होप दिस वाज समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल एंड न्यू टू यू. यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, यू हैव नॉट रेड ऑफ इट. हमने वो सारी चीजें डिस्कस करनी. सो चिल्ड्रन, वी गोइंग टू मीट इन अ रेगुलर सेशंस टुमारो. हम क्या करेंगे टुमारो? बेसिकली अपकमिंग सेशंस जो भी स्केड्यूल हिसाब से वी गोइंग टू हैव दीज सेशंस. सो चिल्ड्रन, प्लीज डू टेक केयर. Keep imbibing, keep registering for the session so that you never miss an update. And we're going to have a full-fledged course for you for your 9th standard, 10th standard. Yes, in detail सारे के सारे teachers पूरा का पूरा discussions हम लोग करेंगे start eventually. Until then, please take care. Keep imbibing. Bye bye. Keep imbibing. We believe in you.